Hello students, welcome to our module 3 of cash flow statement. Myself Madhubala, PGT Commerce from Kendriya Vidyalaya, Muradabad. Students, in our earlier two modules, we have discussed the various theoretical portion of cash flow statement, various terms, provision for tax, proposed dividend, interim dividend की treatment कैसे करनी है, reserves की treatment कैसे करनी है. We discuss the inflows and outflows in all the three activities: operating, investing, and financing. In this module, I shall be discussing with you all cash flow from operating activities with the help of numericals. So let us start. This is question 1, in which we have to calculate cash flow from operating activities. Let's read the question quickly. Pratishtha Limited made a profit of 1 lakh after charging depreciation of rupees 20,000 on assets. That means 20,000 depreciation चार्ज करने के बाद हमारे पास 1 लाख के प्रॉफिट्स बचे हैं. ओके. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज 30,000. ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में इसको एडजस्ट करते हैं. ये हमने फॉर्मेट में डिस्कस किया था. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. गुडविल अमोर्टाइज्ड हमारी नॉन कैश में एडजस्टमेंट्स करेंगे इसकी. गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ P&L में हमने क्रेडिट का रखा होगा, बट हमारा इससे कोई भी कैश फ्लो नहीं होता है, तो इसको फिर हम लेस कर देंगे. तो मैं साथ साथ लिखती चली जाती हूँ. जनरल रिजर्व हमारे NPU में ऐड होगा. डिप्रिसिएशन हमारी एडजस्टमेंट्स नॉन कैश आइटम में प्लस हो जाएगा. देन गुडविल अमोर्टाइज्ड हुई है, ये भी हमारे प्लस होता है. गेन हमारा माइनस होता है एडजस्टमेंट्स नॉन कैश में, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में. उसके बाद हमारा चेंजेस दे रखा है. ट्रेड रिसीवेबल शोड एन इंक्रीज ऑफ रुपीज 3,000. स्टूडेंट्स, whenever there is an increase in the asset, that means it is a outflow. Whenever there is a decrease, that means it is an inflow, क्योंकि हमने इस एसेट को सेल ऑफ किया है तो कैश इनफ्लो हुआ होगा. Opposite is the case with liabilities. Whenever liabilities increases, that means हमने कैश पेमेंट नहीं करी तो हमारा कैश इनफ्लो मानेंगे उसको. और whenever liability decreases, that means we have made the payment and hence it will be cash outflow. तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं. यहाँ पे जैसे TR showed an increase of rupees 3,000. TR हमारे एसेट्स हैं, एसेट्स इंक्रीज करा तो ये हमारा आउटफ्लो. ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज करे हैं 6,000 से. ट्रेड पेबल्स आर लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज इंक्रीज करा, दिस विल बी एडेड. प्रीपेड एक्सपेंसेस आर आर एसेट्स, तो एसेट्स इंक्रीज कर रहे हैं, एसेट्स इंक्रीज कर रहे हैं, इट इज एन आउटफ्लो माइनस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी डिक्रीज कर रही है, लाइबिलिटी डिक्रीज कर रही है, दैट मीन्स इट इज एन आउटफ्लो. चलिए अब जल्दी से इसको फॉर्मेट में लिख लेते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रॉफिट से. प्रॉफिट का हमने देखा कि एक आइटम हमारा प्रॉफिट का है एंड दैट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. तो you can do it with in a working note. I am writing here itself. We are having 1 lakh profits, okay, and transfer to general reserve is then adjustment which has to be done with net profit. So it will be added back and we will be getting 1,30,000. Second item we discussed was depreciation, that it is a non-cash expense and it is like adjusted under adjustments for non-cash and non-operating items. So let me write depreciation. Depreciation is 20,000. Next is goodwill amortized. Goodwill amortized. It is also written under this heading, 7,000. But gain on sale of machinery was credited in statement of P&L. Now it will be deducted. Okay. So gain on sale of machinery. I will be putting this in the bracket which denotes that it will be deducted.
That means this will be 20,000, 27, 27 minus 3 is 24,000. Okay, so this is plus 24,000. हम इसको ऐड कर देंगे. 1,30,000 plus 24,000 will give you 1,54,000. Now some working capital changes is to be done. Working capital changes में we have already discussed how we have to deal. So let us write quickly. TR increased. TR increased is negative. So 3,000 negative. Next, trade payables also increase. That means 6,000 positive. Then prepaid expenses. प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे एसेट्स हैं और एसेट्स इंक्रीज आउटफ्लो है तो कैश आउटफ्लो होता है. देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज आल्सो नेगेटिव क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटीज हैं और लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है. इसका मतलब हमने उनकी पेमेंट करी है. तो दीज आर 4 आइटम्स. हमने इसको ऐसे शो करेंगे और अब जल्दी से इनका अमाउंट निकाल लेते हैं. So their amount will be 3 plus 2 5. 6 में से 5 गया 1,000 positive minus 200 that means 800 positive. Okay. Now we will add these. This will be 1,54,800. अब यहाँ पे taxes का कोई adjustment दे नहीं रखा था तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. Net cash from operating activities. If this answer would have been negative, then we would have used net cash used in. Net cash used in operating activities, but as it is in positive, we will be using the word net cash from operating activities. चलिए एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं. एक बार क्वेश्चन को जल्दी से रीड आउट कर लेती हूँ. हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा है 6,28,000. But it is after provision for tax. That means provision for tax was 1,53,000 और उसके बाद हमें 6,28,000 दे रखा है. तो provision for tax की adjustment जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस की है कि उसमें हम इसको net profit before tax and extraordinary items के साथ adjust करते हैं. तो ये हमारा add back हो जाएगा in the net profit. Insurance proceeds from famine settlement ये हमारा एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स है जो कि हमने क्रेडिट किया होगा वाइल प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ P&L. उस टाइम पे ये हमने प्लस किया होगा. अब हमें इसको माइनस करना रहेगा तो दिस वी विल डिडक्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट. नेक्स्ट इज प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर. हमने डिस्कस किया था कि प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है वो हम डिडक्ट करते हैं करंट ईयर में क्योंकि अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको अप्रूव करके पेमेंट करी होगी. तो ये भी हम नेट प्रॉफिट में ही एडजस्ट करते हैं. इसको हम ऐड बैक कर देंगे नेट प्रॉफिट में. ये तीनों एडजस्टमेंट्स हमने डिस्कस करी. ये हमारी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी की एडजस्टमेंट्स हैं. उसके बाद अगर हम बात करें तो डेप्रिसिएशन दे रखा है 1,40,000 का. ये हमारा नॉन कैश है. ये हमारा एडजस्टमेंट्स में आएगा. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये भी हमारा एडजस्टमेंट का ही पार्ट है. तो डेप्रिसिएशन भी प्लस होगा और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट होता है वो भी प्लस होता है. बट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम रही. उस टाइम पे हमने प्लस किया था. अब हम इसको माइनस कर देंगे. डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट दिस विल ऑल्सो बी डिडक्टेड क्योंकि ये भी हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम रही है. तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम की इनकम है इसको हम माइनस कर देंगे. उसके बाद हमारा दे रखा है डिक्रीज इन करंट एसेट्स अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. दैट मीन्स करंट एसेट्स का टोटल डिक्रीज दे रखा है हमें 10,000. तो जैसे मैंने आपको बताया है पहले न्यूमेरिकल में भी whenever assets increases it is outflow, whenever it is decreases it is inflow, and same is the case with liability. हम देख लेते हैं एक बार. Whenever liability increases it is inflow and whenever liability decreases it is an outflow. So फटाफट लिख देते हैं इनको.
दिस इज डिक्रीज इन करंट एसेट्स डिक्रीज हुआ है, प्लस इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई हैं, प्लस इंक्रीज इन करंट एसेट्स अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट एसेट्स इंक्रीज हुए हैं तो इंक्रीज हुए हैं माइनस, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है करंट लाइबिलिटी, कैश आउटफ्लो। इनकम टैक्स पेड इज ऑल्सो गिवन 1,18,000। तो जितना भी हमारा इनकम टैक्स है वो इनकम टैक्स हम लास्ट में ऑपरेटिंग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद टैक्सेस को माइनस कर देते हैं। रिफंड ऑफ टैक्स को भी हम वहां पर एडजस्ट करते हैं एट द एंड, और साथ में हमारे एंड में हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की भी एडजस्टमेंट करते हैं। तो चलिए अब इन फिगर्स को जल्दी से फॉर्मेट में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से। ये आप वर्किंग नोट में शो करेंगे। आई एम शोइंग हेयर ओनली बिकॉज ऑफ स्पेस, आई एम नॉट हैविंग दैट मच, so let me do it here only. Let us start with it. First of all, we will be writing operating profit after provision for tax. Okay, it is given to you 6,28,000. हम internal details में ही कर लेंगे। What all we have to do is, सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले हम provision for tax ही को add back कर देते हैं। provision for tax इसको हम ऐड बैक करेंगे। आपको दे रखा है 1,53,000। देन प्रपोज डिविडेंड भी हमारा लास्ट ईयर का है, उसको भी हम ऐड बैक कर देंगे। प्रपोज डिविडेंड इज गिवन टू यू 72,000। देन इज इंश्योरेंस प्रोसीड्स अभी मैंने बताया आपको कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम डिडक्ट करेंगे। 1 लाख हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ब्रैकेट में डाल देंगे। उसके बाद रिफंड ऑफ टैक्स, लास्ट फिगर आपको दे रखी थी रिफंड ऑफ टैक्स, उसको भी हम यहीं पे एडजस्ट कर देंगे। तो जितना भी रिफंड ऑफ टैक्स है वो हमने पहले प्लस कर रखा होगा स्टेटमेंट ऑफ P&L में, आप उसको माइनस कर देंगे। दैट मीन्स 3,000 अब हमारा माइनस हो जाएगा। अब हमारा जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स बचा, सारी एडजस्टमेंट्स के बाद हमारे पास फिगर आई है 7,50,000। ओके, नाउ लेट अस डू नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के एडजस्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डेप्रिसिएशन विद अस, सो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम एंड it will be added back. So 1,40,000 is the plus item. Then we have loss on sale of machinery, see 30,000. Okay, this will be added. So this is also 30,000 is a plus item. Then we have profit on sale of investment 20,000. ये हमारी इनकम रही होगी नॉन ऑपरेटिंग, तो हम इसको अब यहाँ पे माइनस करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, दिस वाज मशीनरी, दिस इज 20,000. देन वी हैव डिविडेंड रिसीव्ड, दिस इज ऑल्सो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, तो डिविडेंड रिसीव्ड भी हमारे यहाँ से हम माइनस करेंगे 6,000। ये माइनस वाली फिगर्स को हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। 20,000 minus 6,000 minus and these two will be added. So the total would be 1,44,000. Okay. So अब हम जब निकालेंगे तो बीच में हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। We will be adding it. So we get 8,94,000. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 8,94,000। अब हमारे वर्किंग कैपिटल में हमारे 4 आइटम्स हैं। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, साथ साथ लिखते चलते हैं। डिक्रीज इन करंट एसेट्स,
वी हैव 10,000, दैट मीन्स हमने करंट एसेट्स को सेल किया है तो प्लस फिगर हो जाएगी. देन वी हैव इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, increase in current liability, that is 1,51,000. ये भी हमारी प्लस की फिगर होगी क्योंकि increase in current liability cash inflow है. Then we have increase in current assets, increase in current assets, that is 6 lakh. This will be minus. Then we have decrease in current liabilities, that means 64,000. We have 64,000, and after this total we will be getting negative balance of 503,000. That means 5,03,000. After deducting it, we will be getting 3,91,000. This is our cash generated from operations before taxes and before extraordinary items. So we will make the adjustments. इसमें हम सबसे पहले एडजस्टमेंट करेंगे इनकम टैक्स पेड. Income tax paid is given to you 1,10,000, 1,18,000. Then refund of tax is there. Refund of tax is given to you 3,000. Then we have this extraordinary item also. We had one, insurance premium, sorry, insurance proceeds. Insurance proceeds, insurance proceeds, it's 1 lakh. It is 1 lakh. Okay, so 1,18,000 में से 1,03,000 गया. We are left with 15,000. 15,000 negative. So after this we will be getting 3,76,000. That means net cash flow from operating activities. This is cash flow from operating activities. So ऐसे करके हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकाल सकते हैं. We will be coming up with the new video where we will be discussing investing activities and financing activities also in detail. So till then, all of you, stay home, stay safe.